good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. And today is Monday, 24th July, and we are here with the Hindu analysis of 24th July. So, agar meri awaaz aa rahi hai, if I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. So this is an article, over 13,000 detained in Manipur, more suspects identified in 𝗟𝗲𝗴𝗏 case. This we'll be discussing, and this one is about the Balasore railway accident. And after that, the planning to speed up signaling revamp and all. So these two are actually the important articles we'll be discussing. Meri awaaz aa rahi hai? Am I audible, guys? Yes, okay, fine. Yes. So let's start with the first topic. I hope you are aware, few days back, a very unfortunate video was becoming viral in India and all regarding Manipur. I hope you are aware of that. So regarding that, actually, things were very much in the news. In fact, Supreme Court took the action in this regard as well. So that is what it was in the news. Manipur police detained, matlab arrest kar raha hota ek tarah se na. Over 13,000 people, holding them in preventive custody and destroying nearly 290 bunkers in the past fortnight and all. The police have also identified 12 to 14 people who were there actually in that video and all. So I hope you are aware of that. So that is what is being discussed about it. The most actually severely affected district is 𝗟𝗲𝗴𝗃𝗃. Actually, it has been very much in the news. So please be aware of this place. 𝗟𝗲𝗴𝗃𝗃 is a place in Manipur that have been affected with these violence and all. Okay, there are other cities also like Bishnupur and all. So these are also got affected with it. Just have an idea about it. Then since we are talking about the same incident, related with this incident, this was in the news. What do you mean by suo motu? Your options are friend of the court, due process of law, no one shall be a judge in his or her own case, court taking up the case on its own. Your time starts now. बताइए कि suo motu का मतलब क्या होता है? Anyone? And I think it's an easy question. This was, I think, asked in some exam. It's a previous year question में कहीं पूछा भी है, CLAT या ILET में कहीं भी. अच्छा, friend of the court किसको कहते हैं? कौन सा term use किया जाता है? खास term है friend of the court के लिए. Here the right answer is option D. Court taking up the case on its own. Yes, D is the right answer. Gauri, Priya, Chavan, Nitika. Yes, Sania, Namra, Dhananjay. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Pranshi, Sania. Yes. Kumkum, Seema, Priya, Chavan. Yes. Friend of the court किसको कहते हैं? इंग्लिश में एक टर्म है उसके लिए. Yes, गौरी, very good. Amicus curiae. क्यूरी. और ड्यू प्रोसेस वाला जानते हो, no one shall be a judge in his own case. ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है. इसको ऐसे लिखते हैं ना कुछ लैटिन में, नेमो जुडक्स इन कॉसा सुआ, ऐसा कुछ लिखते हैं. स्पेलिंग चेक कर लेना, बट आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, दिस इज द स्पेलिंग, है ना. नो वन शैल बी ए जज इन हिज ओन केस, जो ऑप्शन सी है, वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक एस्पेक्ट माना था और एक प्रिंसिपल माना था. यस, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Actually, क्या हुआ जब when that unfortunate video got viral, the Supreme Court, the Chief Justice of India also got to know it, and the next day in the morning, he took up the suo motu cognizance. मतलब हुआ कि no one filed a petition, and the judge himself decided to take up this case because, of course, this is gross violation of human rights, and as a Chief Justice of India, he decided to take up that case. Okay, yes. So that is you should be knowing it. suo motu पता होना चाहिए. ये सब, हाँ, ये सब terms पता होना चाहिए. Yes. हाँ, recusal. Yes, नामरा आफ्ताब. Actually एक न्यूज चल रही थी अभी, इसीलिए भी थोड़ा सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. एक ये है, that is what we call. Are you aware of this Mr. Rahul Gandhi defamation case? So Rahul Gandhi case is actually has gone to the Supreme Court bench. जिसमें there is a judge, I think 2 or 3 judges are there. One of them is Justice 𝗟𝗲𝗏𝗏𝗹. Okay, and he was hearing the matter, and he said to the lawyer that, see, I have some background. My father was actually close to Indian National Congress. My brother is also the close to Indian National Congress. So shall I recuse? है ना, ये न्यूज में काफी था.
अगर आप कहेंगे तो मैं रिक्यूज कर जाऊंगा। रिक्यूज करना मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम द केस, जज विड्रॉइंग फ्रॉम द केस, है ना। ओके, सो ही वाज सेइंग कि क्या मैं विड्रॉ कर लूं, इसलिए कि मतलब इनडायरेक्टली मेरे मतलब फादर जो है वो कांग्रेस से रिलेटेड थे, मेरे ब्रदर भी हैं। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि है ना जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस सीम्स टू बी डन, शुड आई विड्रॉ? देन द लॉयर सेड कि नो सर, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, है ना। तो ये आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा ये वाला, है ना। जस्ट हैव एन आइडिया। एंड जस्टिस B.R. गवई वुड बी द, he is going to be the second Dalit Chief Justice of India in future. Okay. The first, who was the first Dalit Chief Justice of India? बताइए तो. Anyone? Write in the live chat. First Dalit Chief Justice of India. ये वाला क्वेश्चन आया था ना CLAT 2023 में कि फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आया था ना. This was asked in the CLAT exam. ठीक है, तो यही पूछ सकते हैं फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु वाज, व्हाट इज हिज नेम? मैंने बताया भी था कुछ क्लासेस में, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट देन आई थिंक यस, जस्टिस KG बालाकृष्णन. फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज जस्टिस KG बालाकृष्णन. यस, है ना. तो ये सब पता होना चाहिए बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम. यस, हाँ, गौरी सीमा कुमारी, राइट, वेरी गुड. सो यू शुड बी नोइंग दीज फैक्ट्स because these types of questions are being asked in exam. ठीक है, yes, नितिका, प्रांशी, you all are right. ठीक है, चलो, let's move on further. फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल थी, रेलवेज पोस्ट बालासोर. पोस्ट मतलब क्या था? आफ्टर. पोस्ट मतलब आफ्टर. पोस्ट बालासोर means after Balasore accident, unfortunate accident. The railway have decided to speed up signaling, revamp. Revamp मतलब एक तरह समझ लो कि एक तरह से पूरा मतलब न्यू सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग वुड बी देयर, और पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया जाएगा. रिवैम्प समझते हो ना? हाँ, पूरे सारे सिग्नलिंग को चेक किया जाएगा, और इफ इट इज रिक्वायर्ड देन न्यू आई मीन वर्जन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम वुड बी देयर. दैट्स अबाउट इट. ठीक है, तो आपको पता होगा, आई होप यू आर अवेयर. आई मीन 1 month बैक इट वाज वेरी मच इन द न्यूज. दिस इज ओडिशा एंड हियर यू विल फाइंड बालासोर. ओके, यस, that is what you should be knowing it. Multi-train accident that happened in June 2nd, allegedly caused by tampering of signaling equipment. Many have alleged मतलब there were some signal issues. बात ये थी कि signal से related कुछ था because of which this unfortunate incident happened. So that is what the overhaul involves converting the system from conventional relay interlocking to electronic interlocking technology. मतलब ये कि they are planning to change this or replace this technology. That is what you should be knowing it. Okay, yes, let's move on. Before okay guys, today I hope you are aware every Monday I conduct this class, so download our app, go to CLAT section, and today at 6 PM I will be doing a revision series. What revision of the Hindu questions that I ask, जो भी the Hindu newspaper का question है which I ask, so that I mean वो वाला question जो मैंने पहले कराए हैं, मतलब 1 or 2-3 months back. So I am just doing the revision of all those parts, है ना. So today at 6 PM please do join me. That would be very 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 beneficial for you. ठीक है, important for you. ठीक है, okay, yes. One more thing is we are having this CLAT 2024 comprehensive program. We are running the crash course also. So 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests, monthly magazines are there. If you have any question, you can call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. Okay, and we are providing a 3-day free trial also. The link is given in the description, or you can download the app, go to CLAT section, and from there you can get the 3-day free trial also. Okay, evening की class 40 minutes की होती है, तो 6 PM वाली पूछे हो ना, around 40 minutes के आसपास की. Okay, yes. Okay, this will be a marathon session. I mean, please subscribe to our channel on our YouTube channel. This marathon series will come very soon. ठीक है, 6 hours non-stop CLAT marathon will be there. So just have an idea about it. Let's start with the editorial. Dilemmas of India's great power ambition. ठीक है. So he's actually Mr. 𝗏𝗵𝗀 𝗥𝗲𝗴𝗏. He writes regarding international relations and all. What kind of global power will India be? There are those who argue that India should aspire to be a great power and assert its growing power internationally. Others argue that India should focus on upliftment of millions of poor and all. तो वही बता रहे हैं कि there are, I mean, different types of people. One say that India should try to assert itself at international level.
other people say कि नहीं, India should focus internally more on poverty alleviation and fighting poverty, hunger, etc. ठीक है, तो ये दो opinion है ना. It is a false binary notwithstanding the equally faulty hyper-nationalist republic. अब ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज बता रहे हैं कि ये बाइनरी सही नहीं है, दोनों पे देखना चाहिए. अब इतना डिटेल नहीं जाना है, मींस he is giving his own opinion. So you are not supposed to go in his opinion, rather we should be learning about facts. जैसे ये एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं. देखो, what happened was, I hope you are aware, 1991 में LPG reforms हुआ था. LPG, you know this? Liberalization, privatization, globalization. How many of you are aware of this? Liberalization, privatization, globalization. Okay, yes. देखो, इसमें हुआ यह था कि बिफोर इट इंडिया वाज मोस्टली मींस इनवर्ड लुकिंग, मतलब बहुत ज्यादा ओपन इकोनॉमी नहीं थी. इट वाज नॉट डूइंग मच ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट आफ्टर 1991 वी बिकेम मोर ओपन इकोनॉमी. वी स्टार्टेड डूइंग मोर ट्रेड, लिबरलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. जैसे हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे आपने देखा होगा, इफ यू सी टुडे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फॉरेन कार्स इन इंडिया. मैं कार से एग्जाम्पल से देता हूँ बिकॉज यू विल बी एबल टू कनेक्ट. जैसे अगर आप ये रोड पे जाओगे, सो यू विल फाइंड अ कार लाइक फॉरेन कार, BMW की गाड़ी यू विल फाइंड इन इंडिया, मर्सिडीज की कार और एंड दी फोर्ड की कार, सब फॉरेन कंपनीज की है ना. यू विल फाइंड इट वेरी इजली. बट बिफोर 1991 यू विल फाइंड हार्डली फाइंड एनी फॉरेन कार्स. ठीक है, आपने देख, अगर आप 1991 से पहले तो आप नहीं होगे, आप मम्मी पापा से पूछना, देयर वर हार्डली फॉरेन कार्स और फॉरेन कंपनीज मोटरसाइकिल इन इंडिया. ठीक है, बट आफ्टर LPG वी हैव सीन एंटरिंग ऑफ द more private companies, the more globalization, increase interaction with the rest of the world and all. And that is what you should be knowing it. So with the 1991, a weak, poor, deeply beleaguered country. So he's saying just before 1991, our situation was not very good actually. In fact, just 1991, we have witnessed the balance of payment crisis. इसको कहते हैं. Balance of payment crisis, you can say foreign exchange reserve was very less. बहुत कम चला गया था. And that is why we had to take loans from IMF, and for that there were some conditionalities and all. ठीक है, so yes, so that is what he is talking about कि foreign exchange reserve was 5.8 billion only. अभी कितना है? अभी 600 billion के आसपास है. ठीक है, उस टाइम बता दे सिर्फ 5.8 billion था. उतना रटना नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए जस्ट. ठीक है, राइट नाउ आई थिंक इट्स अराउंड 600 billion. आप चेक कर रहे ना, ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है, 506 billion के ऊपर नीचे. ठीक है, so for a population of 846 million, around 50% whom were poor, those were miserable figures, है ना. उस टाइम पर 84 करोड़ आबादी थी, 84.6 करोड़, है ना. 50%, half of them were poor, which was a very serious thing. अब तो पॉवर्टी काफी कम हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, इंडिया की पॉवर्टी 22% है. ठीक है, और जैसे भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, उसमें तो इंडिया की पॉवर्टी 14-18% के आसपास दिखा रहा था, मल्टी डायमेंशनल पुअर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट. ठीक है, सो नाउ वी हैव इंप्रूव्ड दैट अ लॉट, है ना. फिर देन 1991 में ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था. 1991 कोलैप्स ऑफ USSR हैपेंड आल्सो. बहुत सारी चीजें 1991 में हुई. मेनी थिंग्स हैपेंड both at international level and domestic level. A lot of things got changed, है ना. So that is what you should be knowing it. Fast forward 3 decades to 2023, India's foreign exchange reserve is touching around $600 billion. अब हम लोग 1991 से आते हैं 2023, मतलब कितना साल हो गया? लगभग almost 32 years. Now our foreign exchange reserve is much better, है ना. And the war with Pakistan is not something Indian leaders lose sleep over. China has taken the place. मतलब ये कि now मतलब कहने का मतलब है कि although we should not be thinking of war, but yes, if God forbid happens, I mean we'll be able to very easily handle it, है ना. So that is what is being talking about. So 1991 economic crisis में reforms initiate हुआ, उसके बाद, है ना, post 1991 बहुत सारे reforms हुए थे, है ना. So that is what is being talked about. Ranked as world's 5th largest economy. हाँ, nominal GDP में rank 1 is USA, है ना, and 5th rank as far as GDP is concerned is India, है ना. ओके, ठीक है. सो वही बता रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज एक्चुअली अराउंड $4 ट्रिलियन के आसपास आ गया है ना. एंड इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड विद 100 न्यूक्लियर वेपन. तो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है. यूएस इज नाउ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, है ना, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड है इंडिया का एंड ऑल. India is also one of the pivotal swing power of the contemporary international strategically located and all. The great power politics around Ukraine war brought renewed focus on India's role in geopolitics. तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल है इन द सेंस की, आई मीन मेनी
Western power wanted that India should actually support Ukraine. बहुत सारे जितने भी रेजोल्यूशन हुए, a lot of UN resolution we actually abstained. ठीक है, मतलब एक तरह से न्यूट्रल है, मतलब we did not support either of them, I mean in the voting process. But USA wanted, USA ने और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने मतलब रिक्वेस्ट किया या प्रेशर डाला, whatever you can say, that India should not be favoring Russia and all. So the US and the wealthy West want India to be on their side. यानी मेरे तरफ यानी यूक्रेन की तरफ रहे. Because in Russia-Ukraine war, all the Western countries, US, France, etc., they are actually favoring Ukraine, है ना? So they wanted, the US wanted that they should be favoring on their side, but what India does not do, है ना? It did not. An embattled Russian Federation is doing everything it can ensure India does not turn its back and all. So Russia also wants that India to have good relations, है ना? Russia भी चाहता है कि India से अच्छा relation रहे. In the past also we have a better relation and all. ठीक है? That is what. New Delhi increasingly uses language of mediation in global crisis. Mediation मतलब बातचीत करके, negotiation, है ना? मतलब we should solve the problem through mediation, talks and all, rather than the war and all, है ना? हाँ, so each of all the tens of billions, अभी भी बहुत सारे लोग poverty में रह रहे हैं, but the country's national power has increased dramatically, making it a force with system shaping capabilities and all. ठीक है, तो अपना बहुत सारी चीजें और ही बता रहे हैं. हाँ, ये बता रहे देखो GDP per capita. देखो जनरली क्या होता है, GDP as far as GDP is concerned, India is 5th highest. But when it comes to per capita, यानी per person, because India has a huge population, मतलब GDP by population. Okay, per capita is GDP by population. Now, when population in India is so high, actually numbers becomes very less. ठीक है, तो 2021 में $1947 था और बांग्लादेश का $2227 था. ओके, नाउ अगर आप यहाँ देखोगे अभी जो है इंडिया का जो है वो जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 2388.6 पर ईयर ये होता है, यानी लगभग $2400 के आसपास एक साल में पर पर्सन कमाते हैं इंडिया में. ओके, एंड इफ यू सी इन एक्चुअली यूएसए इट इज वेरी हाई, $76,000. 7398 का हम 400 मांग लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं. $76,400 पर पर्सन पर ईयर इज द इनकम ऑफ वर्ल्ड बैंक. और यहाँ देखो $2400 पर ईयर पर पर्सन. ओके, इज इट क्लियर? आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? स्टार्क डिफरेंस इज देयर. तो इसी को बता रहे हैं, फिर उन्होंने बांग्लादेश से कंपेयर किया है ना. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. एक्चुअली क्या होता है, इंडिया की चूंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाता है. जीडीपी बाई पॉपुलेशन इज सो हाई, when denominator becomes large, आपको पता होगा मैथ से पढ़ते हो कि when denominator is very large the number becomes very small, है ना? So that is an issue. Okay, now one of the most pressing concern for India's political class is to reduce poverty and improve the well-being of millions of Indians living under the poverty line, a task that is beyond to divert their attention and all. हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि poverty और improve well-being of the millions, है ना? In fact, these are mentioned in DPSP. I have taught in the paid classes, DPSP and all. When the political class gives scant attention to the country's foreign and security policy, it is usually happen in the case of India, it is managed by career bureaucrats and all. Scant attention मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, not very much keen to give attention. मतलब ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के पास अपना it is up to the bureaucrat to solve it. Bureaucrat मतलब ऑफिसर्स, IAS, IPS and all, IAS officers and all, ठीक है, who usually not diverge from precedents and avoid taking even remotely risky decision. अब क्या होता है कि जब पॉलिटिकल क्लास भी अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स आर आल्सो नॉट टेकिंग रिस्की डिसीजन. ये सब अपना उनका ओपिनियन है, ही इज टेलिंग यू दीस ओपिनियंस एंड ऑल. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू इट. इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, है ना. So despite overall increase in budget allocation, the allocation made to external affairs ministry has witnessed a downward trend. यानी जो allocation foreign ministry को दिया जाता है वो कम हो गया बजट में. ठीक है, downward trend में which is going decreasing. Okay, that is what is being discussed. So should India refrain from shaping the global order until its domestic challenges are resolved as the pessimists would have it, or should India continue to assert its place in the world and aspire to be a great power? ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि क्या इंडिया को अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस में फाइट करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर ग्रेट पावर असर्ट करना चाहिए. दैट इज व्हाट द डिबेट इज एंड ऑल, है ना. अब इसमें डिटेल नहीं जाना, ही इज अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग एंड ऑल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, डाउनहिल ड्राइविंग एंड ऑल. सो बेसिकली
This is about the export of India after hitting a 775 billion export in fiscal year. देखो ये सब मैंने पढ़ाया है, इसको ऐसे लिखते हैं FY23 fiscal year and all, है ना. I have taught this in paid classes. India's exports are off to a rocky start this year. Outbound shipment of goods that crossed $450 billion last year have contracted 15.1% through the April to June 2023 and all. ठीक है, तो ये बता रहे हैं. अब देखो सब नंबर्स याद नहीं रखना because it keeps on changing very fast. ठीक है, तो ये अब बता रहे हैं कि आउटबाउंड शिपमेंट जो है $450 बिलियन हो गया है. ठीक है, सो आई मीन वी आर शोइंग अ गुड ट्रेंड एंड ऑल. दैट इज व्हाट इट इज. कोविड लॉकडाउन के टाइम पर थोड़ा सा डाउन चला गया था, है ना. हैपन एवरीथिंग गॉट कॉन्ट्रैक्टेड, है ना. कॉन्ट्रैक्शन इन बिजनेस, ट्रेड हुआ था, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इसलिए कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हैपेंड एंड ऑल, है ना, ड्यू टू कोविड एंड ऑल. देयर हैज बीन डिक्लाइन इंपोर्ट बिल एज वेल. जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो रहा है, तो अच्छी बात है ना. बिल जो यानी हम लोग जो बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, लेट से अगर ऑयल प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो इंपोर्ट बिल काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा. यस, बिकॉज ऑलमोस्ट 80-85% ऑयल वी इंपोर्ट. ओके, सो इफ द ऑयल प्राइस इज लेस वी हैव टू पे लेस, है ना. सो इफ यू आर सेंडिंग लेस डॉलर तो अच्छी बात है ना, हमारे पास ज्यादा डॉलर बचा रहेगा, है ना. सो दैट इज व्हाई इन फैक्ट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज गॉन अराउंड $600 बिलियन. ठीक है, okay, this 12.7% dip is largely driven by prevalence of lower commodity price in this year compared to the same quarter, when the import bill had shot up 44% after Russia-Ukraine conflict and all. ठीक है, तो जब लास्ट ईयर एक्चुअली हुआ क्या था, ऐसा कुछ हुआ था जैसे फरवरी मार्च था ना, लास्ट ईयर फरवरी मार्च में ये हुआ था. एक्चुअली द वॉर स्टार्टेड हैपनिंग, ये दिसंबर का है. उसके बाद ना पेट्रोल का दाम बहुत तेजी से बढ़ गया था, लेकिन लास्ट में दिसंबर के लास्ट ईयर तक आते आते पेट्रोल का प्राइस, इंटरनेशनल पेट्रोल का प्राइस और डिक्रीज हुआ था. ठीक है, तो इसी की वो बात कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया. इतना नंबर्स नहीं याद रखना है, बट एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए. जस्ट आफ्टर द वॉर द पेट्रोल प्राइसेस वेंट इंक्रीज्ड, है ना, वेंट अप इंक्रीजिंग फास्ट. बट लास्ट ईयर दिसंबर तक आते आते वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया था. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो WPI बोथ हाई था, CPI दोनों जो है ना यहाँ पे आके दिसंबर के पास आकर के कन्वर्ज कर गया, बिकॉज होलसेल प्राइस इंडेक्स का दाम डिक्रीज हो गया. वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन ऑफ इन ऑयल और क्रूड ऑयल गॉट डिक्रीज, है ना. महंगाई बताया ना कि दिसंबर में आके कम हो गई थी पेट्रोल प्राइसेस. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, ओके. सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर स्टिल ग्रोइंग बट एट अ फार somber pace. That IT exports who drive most of these intangible exports have been intangible. तो उसको टच नहीं किया जा सकता. देखो एक्सपोर्ट्स दो तरह का होता है. जैसे कोई गुड्स है, गुड्स को एक्सपोर्ट करें तो टैंजिबल उसको आप टच कर सकते हो. मान लो लेट्स से यू आर एक्सपोर्टिंग मोबाइल फोन, दैट्स अ गुड, यू कैन टच इट. इनटैंजिबल मतलब होता है सर्विसेज एक्सपोर्ट करना. जैसे आउटसोर्सिंग बेस्ट एग्जांपल है. बहुत सारे लोग, a lot of people in India do job for American companies and they get money. That's intangible export. We are exporting services and we are getting money, है ना. So have been tentative and decidedly downcast about their earning guidance and all. That is what it's talking about. ठीक है. Okay, yes, that is what you should be knowing it. And the US Treasury Secretary has excluded in confidence that a recession in the world's largest economy may be averted after all. तो ये बता रहे हैं कि यूके ने कहा था कि रिसेशन नहीं आएगा. अच्छा, आई हैव टॉट दीज कॉन्सेप्ट्स इन पेड क्लासेस. व्हाट इज रिसेशन, है ना, ये सब मैंने पढ़ाया है. होपफुली यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दीज नोट्स, है ना, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हिल्स एज वन हैज टू प्राइस. अब चलो इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉर्म GPT? योर ऑप्शंस आर malicious GPT tool, Chat GPT advanced version, GPT made by Google, none of the above. Your time starts now. बताइए. नहीं नारायण जी, एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते. मतलब हाँ ठीक है, सर्विसेज बहुत ज्यादा है. यस, सर्विसेज में इंडिया एक्सपोर्ट में पॉजिटिव है, इंडिया का एक्सपोर्ट. यस, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं लिखना चाहिए कि एकदम नहीं रिलाई करते हैं, बट हाँ यू कैन से कि वी डिपेंड मोर ऑन एक्सपोर्ट सर्विसेज, है ना, एक्सपोर्टिंग सर्विसेज. हाँ, वॉर्म GPT क्या है देखो. हाँ, अब देखो क्या है ना कि चैट GPT इतना न्यूज में आ रहा है, तो ये मिस्चीवियस वर्जन ऑफ चैट GPT आप कह सकते हो. दिस एक्चुअली कैन बी यूज फॉर साइबर अटैक्स, फ्रॉड एंड ऑल, साइबर फ्रॉड एंड ऑल. तो ये काफी आजकल न्यूज में आ रहा है. Worm GPT and AI bot used for phishing attacks. phishing सब ये सब देखो डिफरेंट अटैक्स का तरीका होता है. phishing होता है, मालवेयर होता है, फिर एक होता है रैंसमवेयर होता है. ठीक है, स्पाईवेयर होता है. सब एक ही तरह का है.
सो ऑल हैव एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वर्क होता है. स्पाईवेयर कंप्यूटर में जाके बैठ जाके स्पाइंग करेगा, रैंसमवेयर आपसे पैसा मांगेगा, ठीक है, मालवेयर, फिशिंग, आई मीन दे आर एक्चुअली all are actually the version of cyber attacks, you can say. So अब ये बता रहे कि वर्म जीपीटी जो है this can be used for unethical cyber attacks and all. तो ये काफी सारे कल परसों से मैं देख रहे थे, न्यूज में था, so that is why you should be knowing it. I hope कि आपको जीपीटी का फुल फॉर्म अब याद होगा, and I hope you are aware of that. Okay, now actually article a case for a new pronoun for AI, artificial intelligence. ठीक है, आजकल artificial intelligence काफी न्यूज में है. There was a question in CLAT 2023, पूरा एक पैसेज ही था, entire one passage was based on it, right? So जैसे she is talking about large language models are fueling chatbots that converse like human experts and all, है ना? So LLM का example बता रहे हैं, है ना? So in fact this question was also asked, बताओ तो, lambda मैंने कई बार पूछा भी है, and this is also an example of LLM, large language models, है ना? So actually large language model अपने आंसर पता ही होगा, language model for dialogue application, है ना? So this is an example of LLM. I have taught you many times, है ना? B is the right answer. देखो एक और AI से related question था कि in Meta and its newly released fully trained large language, again वही AI model is called what? ये इससे पहले का B आंसर था, बहुत से लोगों ने आंसर किया, गौरी, आलोक, प्रताप, सानिया, कुमकुम, प्रिया, चवन. मेटा आप जानते हो? मेटा, फेसबुक को मेटा कहते हैं. Yes. Fully trained large language AI model is called what? ये बताओ तो, और फुल फॉर्म बता दो तो और अच्छा है. Yes, OPT actually इसका नाम था, है ना? B is the right answer to this question. मेटा जो है फेसबुक की प्राइवेट की पेरेंट कंपनी को कहते हैं ना. ओपन प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना, बाय मेटा एआई, है ना, सीरीज ऑफ ओपन सोर्स लार्ज कॉजल लैंग्वेज मॉडल्स एंड ऑल, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. यस, प्रिया, चवन, सानी, अंसारी, आलोक, प्रताप, गौरी, यू आर राइट. देन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग. इनको फादर ऑफ एआई वगैरह भी कहते हैं कई बार, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, बट वन ऑफ देम इज एलन ट्यूरिंग. had proposed an imitation against game to test a machine's ability to demonstrate intelligent behavior that is indistinguishable from that of a human. तो ये उन्होंने बताया था कि ऐसा टेक्निक बताया था कि मशीन विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन, है ना, इंटेलिजेंट बिहेवियर, जैसे ह्यूमन थिंक करता है, थिंकिंग पावर, है ना. सो लाइक सिमिलर टू दैट. सो बेसिकली इन फैक्ट दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन इन क्लैट लास्ट ईयर, और यही क्वेश्चन था. इफ यू सी इट केयरफुली, देखो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है. इफ यू रीड इट, दिस इज ऑल अबाउट द लैम्डा, है ना, लैम्डा का जिक्र है. दे हैव आस्क्ड अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ लैम्डा. फिर लिखा है इन द जर्नल माइंड इन 1950 मैथमेटिशियन 1 proposed a test to determine whether a machine was capable of exhibiting intelligent behavior, a game of imitation of some of the human cognition, है ना, लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है. और ये वाली लाइन पढ़ो, आर दी सेम और नॉट. यस, रीड इट, इसको पढ़ो और इसको पढ़ो. यस, लिखा बना है कैपेबल ऑफ एग्जिक्यूटिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, ए गेम ऑफ इमिटेशन ऑफ सम ऑफ द ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन. और ये भी वही मोर लेस, डेमोन्स्ट्रेट इंटेलिजेंट बिहेवियर दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन. वो स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है बट मीनिंग इज सेम. एंड हियर इट इज टॉकिंग अबाउट एलन ट्यूरिंग, है ना. वन किसके बारे में, तो द आंसर इज एलन ट्यूरिंग. यस, सो इफ यू आर सीइंग इट, दैट इज व्हाई आई हाईलाइट. लोग पूछते हैं कि सर क्यों पढ़ना जरूरी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड हियर इज द रीजन फॉर दैट. ओके, यस, ठीक है. Yes, lawmakers are divided over the question of attributing a legal personhood to AI. This becomes more complicated with autonomous machine, but there is consensus that misrepresentation of identity of AI feels like manipulation and all, है ना. अब देखो इसमें बहुत सारी चीज है कि लीगल पर्सनहुड एंड ऑल. देखो इसमें कुछ चीजें जो होती है ना, हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. लाइक दिस इज अ वेरी फेमस टेस्ला कार, है ना. कोई भी एक एग्जांपल से बता रहे, सेल्फ ड्राइविंग कार होती है ना, ये सेल्फ ड्राइविंग कार इज देयर. अब मान लो सेल्फ ड्राइविंग हो रही है, ड्राइवर चला नहीं रहे, सेल्फ ड्राइविंग को छोड़ दिया, एंड इट हिट समवन, एक्सीडेंट हो गया, किसी को हिट कर दिया. सो हु इज लीगली लायबल? अगर कोई आदमी चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है ना, सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, रैश ड्राइविंग में, या अगर कोई जानबूझ के डेलिबरेट मिस्टेक है. बट इफ देयर इज एन ऑटो पायलट मोड क्या होता है? ऑटो पायलट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. ऑटो पायलट मोड में कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, एंड द पर्सन इज जस्ट सिटिंग, ही इज नॉट ड्राइविंग, द ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग, और अपने से चल रही है और हिट कर दी, तब क्या होगा?
who will be responsible for that? So these are some of the issues, है ना, regarding it, कि इसको कैसे solve किया जाना है ना. फिर जेंडर, कौन सा जेंडर दिया जाए, मींस whether it's male, female or something like that, हाँ, है ना. So that is what is being talked about. ठीक है. सीरी भी जानते हो, अगर आप इफ यू नो, अगर आपने आईफोन वगैरह चलाया उसमें सीरी होता है. आई मीन दिस चैटबॉट, अगेन एआई चैटबॉट. यू आस्क क्वेश्चंस एंड दैट चैटबॉट विल आंसर, है ना. सो दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट कि ये जेंडर न्यूट्रल वॉइस है, डिफॉल्ट फेमिनिन वॉइस है, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, दैट्स आल्सो अ डिबेट. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज आल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ठीक है. एक और आर्टिकल थी, गॉड फादर ऑफ एआई सेज ही रिग्रेट्स हिज लाइफ वर्क, क्विट्स गूगल टू वार्न ऑफ एआई डेंजर. ये जनाब है जियोफ्री हिंटन. आई मीन 2 months बैक इट वाज वेरी मच इन द न्यूज एंड ही वाज एन ऑफिशियल इन गूगल एंड ही रिजाइंड. वो इसीलिए कि उनको पता है, अब उनको ये रियलाइज होता है कि हमने इतना सारा चीज तो रिवर्शन कर दिया, नाउ एआई हैज अ लॉट ऑफ डेंजर्स एसोसिएटेड विद इट, और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है. ओके. So that is what he is talking about, that yes, there can be a lot of misuse that can happen and that is why this needs to be stopped and all. और इसीलिए उन्होंने resign भी कर दिया, हालांकि उनका बहुत बड़ा contribution है. He has a huge contribution. Please read about him. इसलिए कि आजकल artificial intelligence से question पूछ रहे हैं. So after the class is over, read about him on Wikipedia or some other websites. Geoffrey Hinton के बारे में. ठीक है. Okay. Yes, subverting mandate Thailand's military. अब देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि मई में थाईलैंड में इलेक्शन हुआ था. इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, बट थोड़ा सा बता दें. ठीक है. सो इलेक्शन हैपन एंड टिल नाउ देयर इज नो गवर्नमेंट, अभी तक बनी नहीं है. देखो, मूव फॉरवर्ड गॉट द हाईएस्ट मेजॉरिटी, हाईएस्ट सीट्स. ठीक है. लेकिन जो जितना नंबर ऑफ सीट्स चाहिए थे, दे कैन नॉट मेक द गवर्नमेंट. सो अदर पार्टीज, बाकी पार्टी मिलकर के कोशिश किया. ठीक है. सो अदर पार्टीज ट्राई टू मीट इट, है ना. The move forward and the pro democracy few parties emerged as the largest parties. इन लोगों का highest seat मिला है ना इन दोनों को, है ना. So that is what is being talked about. Yet the Thai military went after the architect of opposition victory, the 42-year-old 𝗞𝗏 𝗔𝗂 and all. ठीक है. तो देखो ये जो ना move forward के ये हैं लीडर हैं, and he is actually generally considered as against the idea of army. And there is army rule or something like that. Army is very powerful in Thailand and all. ठीक है. So this is the person who has got the highest seat and all. But yet to become, मतलब 𝗞𝗏 𝗥𝗲 is yet to become the prime minister and all. ठीक है. तो उसी के बारे में बता रहे हैं. He had promised that he will end the cycle of coup, means he will reduce the power of military and all, है ना. He will remove, scrap मतलब खत्म करेंगे military based, military drafted constitution. He will slap and scrap मतलब end करेंगे, है ना. So these was his promises given and all. But still अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है कि 750 मेंबर है, उसमें जो है 376 लॉ मेकर्स का सपोर्ट चाहिए. But they could not give the support and all. That is what is being talked about here. ठीक है. तो अभी तक नहीं बना है. What is the capital of Thailand? आपको बताना है. Your options are Bangkok, Hanoi, Phnom Penh, Naypyidaw. What is the right answer to this question? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Everyone please press the like button and subscribe to our channel. What is the capital of Thailand? बताइए. Anyone? Yes, Gauri, Namra Aftab, Priya Chavan. The right answer is Bangkok. So A is the right answer. Nitika Singh, Manu, Zoya Khan, Kumkum. Yes, very good. हाँ. ये इंडिया है, म्यांमार है, ये थाईलैंड है, यहाँ पे बैंकॉक. ठीक है. So just have an idea. तो यहाँ पर भी military is very much powerful here. So just have an idea about it. Okay. Yes. Pranchi, Namra Aftab. Thailand election winners make way for allies after PM bids fails and all, है ना. So that is what you should be knowing it. अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं इलेक्ट हो पाए. देन अपोजिट में है द ओपिनियन में आर्टिकल द पॉलिटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये मैंने कई बार डिस्कस भी करा है. सो नाउ दिस अ क्वेश्चन फॉर यू. इट इज मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 3. पार्ट 3 दो बार लिखा गया. पार्ट 5 होगा जी, गलती से लिख दिया. तो पार्ट 5 कर लेना. वेयर डू वी फाइंड यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड? हाँ, आर्टिकल 44 तो सही है. यस गौरी, यू आर राइट. बट आर्टिकल 44 कौन से पार्ट में मेंशन है? यस, पार्ट 4 में ना, DPSP में ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो 2 इज द राइट आंसर. यस, नितिका, सानिया, नम्रा, गौरी, कुमकुम, प्रिया, आलोक प्रताप सिंह. बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने लिखा है, तो पढ़ लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज में बहुत पढ़ा दिया गया, इतना कुछ डिस्कशन हो गया. वी हैव डिस्कस्ड इट इन पेड क्लासेस इन डिटेल, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ऑल. ठीक है. सो आई थिंक नो नीड टू गो वेरी मच इन डिटेल.
Let's talk about this. Beta-quiline is a medicine for what? TB, dengue, AIDS, malaria. Actually, text and context में एक article था, उसमें था discussion. तो मैंने सोचा पूछ लूं. Beta-quiline एक medicine है for what? कौन सी बीमारी के लिए? बताइए. हाँ, बेटा-क्विलाइन इज फॉर एक्चुअली MDR TB, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB. जब TB ऐसा हो जाए कि बहुत सारी दवा उस पर काम नहीं कर रही हो, है ना. सो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यस गौरी, सीमा, सानिया, मानू, जोया, यू ऑल राइट, है ना. विद जेनेरिक सप्लाई ऑफ बेटा-क्विलाइन बी एक्सेसिबल एंड ऑल, है ना. तो इस पर काफी न्यूज था. बेटा-क्विलाइन हैज नाउ बिकम द कॉर्नरस्टोन टू क्योर ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑल. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. द नेक्स्ट इज हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. योर ऑप्शंस आर न्यूटन, ओपेनहाइमर, आइंस्टाइन, none of the above. फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किसको कहते हैं हम लोग? बताइए तो. यस गौरी, धनंजय, यू आर राइट. एक्चुअली अभी इन पर एक शायद फिल्म वगैरह आई है, which is actually becoming very famous and all. Priya Chavan, Gauri, Dhananjay. So he is actually was instrumental in making atomic bomb in USA and all. तो मानू, गौरी, yes you are right. So इन्हीं के बारे में J. Robert Oppenheimer. ठीक है. And what is the name of the project under which USA made the atom bomb under the leadership of Oppenheimer? Your options are Project Little Boy, Manhattan Project, Virginia Project, Washington Project. Project का नाम बताना है आपको जिसके अंदर सबसे पहले एटम बम बनाया गया था. ओपेनहाइमर उसके लीडरशिप में था. यस, इनफैक्ट समवन हैज आंसर्ड इट इवन बिफोर आई आस्क्ड द क्वेश्चन. यस, नंबर ऑफ द वेरी गुड. गौरी, धनंजय, सीमा, मानू. हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं. इनफैक्ट अगर आप इफ यू गेट टू नो अबाउट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मैनहट्टन है. ठीक है, वहाँ लोग डिस्ट्रिक्ट नहीं यूज करते हैं, लेकिन फॉर योर पर्पस आई एम सेइंग. सो मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज द नेम ऑफ इट. यू शुड बी नोइंग इट, है ना. World War II से पहले just and all first nuclear weapon it was, है ना. 1942 से 46 तक project was the nuclear physicist Robert Oppenheimer was the director of this, है ना. तो इन्हीं पे फिल्म वगैरह बनी है. Manhattan district was there and all. तो ठीक है, just have an idea, है ना. 75 people still untraced in landslip hit village in Raigad is a place in Maharashtra. यहाँ पर कुछ landslides वगैरह हो गया था. I hope you are aware of that. And still 75 people are untraced, मतलब मिल नहीं रहे. They are, I mean, unable to find out कि कहाँ हैं वो लोग. So यही न्यूज़ था. Because of heavy rainfall and all, landslides have happened. देखो मैंने आपको बताया भी है कि वाला वेस्टर्न घाट रीजन है, पहाड़ी का रीजन, राइट, है ना. ज्योग्राफी में आई हैव टॉट इट वेस्टर्न घाट. ओके, सो वेस्टर्न घाट में ऊंची ऊंची पहाड़ी होती है. इफ यू गेट अ चांस, लेट्स से अगर आप मुंबई से कहीं जाओगे ना, मान लो किसी भी इस एरिया में, तो यू विल फाइंड थ्रू ट्रेन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टनल्स. वहां पे बहुत सारे टनल मिलेंगे. जो लोग महाराष्ट्र में रहते होंगे उनको पता होगा, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल. तो चूंकि ऑफकोर्स जहाँ पे लैंडस्लाइड्स कहाँ पे हो गए, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है. वेरी यू विल फाइंड मोर माउंटेनियस रीजन, यू विल फाइंड मोर लैंडस्लाइड्स, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. तो इसीलिए सब हादसा न्यूज में था एंड ऑल. ओके, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. Russia strikes Odessa cathedral as Putin says Ukraine counter-offensive failed. Cathedral मतलब आप समझ लो एक तरह का चर्च है, उसमें अटैक हुआ है ओडेसा में. So here is Odessa. Let me show you. Here is India. This is Russia. ये पूरा रशिया है, huge सा. This is Ukraine. तो यूक्रेन में यहाँ पे आप देखोगे ओडेसा पोर्ट है. ओडेसा पोर्ट काफी न्यूज वगैरह में रहता है, ब्लैक सी में. Okay. So here actually Russia attacked and all, and that is why it was in the news. Just have an idea about it. So this is all about today's class, guys. Now I'll be meeting you. Please download our app. Go to CLAT section at 6 PM. I'll be meeting with you. Okay. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.